यहाँ आ जाओ। है आओ। Honorable members, honorable the speaker. आपकी गोड़ी है Honorable members, I cordially welcome you all to the District Level Youth Parliament 2022. Hope the session will be a fruitful one as we will deliberate the important matters concerning national interest. Today's first business is oath taking. Secretary General, please. Mrs. Ikshita Yadav, who stands elected from Bijnor constituency of Uttar Pradesh, to take an oath or affirmation, please. Madam, would you like to take oath or affirmation? Sir, I would like to take oath. English language. मैं हिंदी में शपथ मैं इप्सिता यादव जो युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ व सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। Mr. Ritesh Jogi, who stands elected from Indore constituency of Madhya Pradesh, to take an oath or affirmation, please. Sir, would you like to take oath or affirmation? Yes, I would like to take oath. In which language? संस्कृत भाषायां स्वच्छे भाषामि। अहम हितेश जोगी युवा संसद सदस्य निर्वाचित अस्मि। ईश्वरस्य साक्षी कृत्या प्रतिज्ञा च करोमि यत् विधि द्वारा स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति श्रद्धायुक्ता भविष्यामि। देशस्य सर्वभौमताम् ऐक्यं च सम्पालयिष्ये, यं पदं धारयिष्ये तस्य कर्तव्यं श्रद्धापूर्वक निर्वहिष्ये। धन्यवादः। Congratulations. Thank you. Mr. Naresh Naidu, who stands elected from Hyderabad East constituency of Telangana, to take an oath or affirmation, please. Sir, would you like to take oath or affirmation? I would like to take oath. In which language? I would like to take oath in English. I, Naresh Naidu, having been elected a member of Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I have to enter. Congratulations.
ये लाना बेटे गया Honorable members, as we meet today, it is my sad duty to inform the House with profound sorrow to passing away of Miss Lata Mangeshkar, a legendary playback singer and a former member of this House. She died on 6th of the February 2022 at the age of 92 years. Fondly known as the Nightingale and the Melody Queen, Lata ji recorded over 25,000 songs in her career. Her singing powers has been as diverse as our country, with her recording songs in over 36 Indian languages and a few foreign languages. Lata ji has also served as a nominated member of Rajya Sabha from November 1999 to November 2022. Lata ji's success in the field of music exemplifies her tenacity and sheer willpower to carve her own niche and excel in it. Her rise to fame elucidates her determination, hard work and passion that will serve as a benchmark for others. In the passing away of Miss Lata Mangeshkar, a legendary playback singer and a compassionate human being and a towering personality in the world of Indian music and film industry, her passing away indeed marks end on an era and has created an irreplaceable void in the world of music. Thank you. We deeply mourn the passing away of Miss Lata Mangeshkar. Now I request Leader of Opposition to express her condolences, please. Thank you. आसमां को छू गई, आसमां को छू गई, वो आसमां से भी विशाल थी, धरती में सिमट गई, वो मिट्टी से भी नरम थी। कौन है वो, कौन है वो जो अमर रह पाया जिंदगी भर, अमर बनकर जो जिंदगी को पा गई हो, वही तो लता थी। आदरणीय स्पीकर मैडम, लता मंगेशकर जी के रूप में माँ भारती ने एक अनमोल रतन को खो दिया है। लता मंगेशकर जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी, स्वर सम्राज्ञी के रूप में जानी जाती थी। उनके निधन का दुख तो शब्दों से परे है। उनके संगीत का सफ़र आज़ादी के समानांतर ही चलता रहा। ऐ मेरे वतन के लोगों जैसे न जाने कितने गीतों के माध्यम से उन्होंने देश के लोगों में देशभक्ति का स्वर जगाया, साथ ही साथ हमें संगीत प्रेमी बना दिया। लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं है, परंतु वे अपने गीतों के माध्यम से हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। मैं आज इस सदन के माध्यम से उनके परिवार एवं समस्त देशवासियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद मैडम। Now I request the Honorable Prime Minister to express his demise, please. Honorable Speaker Madam, मैं आपके माध्यम से तथा इस गरिमामयी सदन के माध्यम से स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वर कोकिला के निधन का कि उनकी आवाज़ हमेशा हमारे साथ रहेगी। उनकी आवाज़ ही तो हमारी पहचान है। निर्विवाद रूप से अद्भुत शब्द ही लता मंगेशकर जी की अविश्वसनीय प्रतिभा को परिभाषित कर सकते हैं। स्वर साम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज़, सहस्त्रवादियों की आवाज़, स्वर कोकिला, भारत कोकिला लता मंगेशकर जी को मैं एक कवि के शब्दों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अशोक के इस बाग में, अशोक के इस बाग में किसने फैलाया शोक, अशोक के इस बाग में किसने फैलाया शोक, तने को ही चुभ रही है तेज पंखुड़ियों की नोक, तने को ही चुभ रही है तेज पंखुड़ियों की नोक। टूट गया है भैरवी का बांध, टूट गया है भैरवी का बांध, हर आंख में भरा पानी है, हर आंख में भरा पानी है। विक्षिप्त से सातों सुरों को है तलाश अपनी दीदी की, है तलाश अपनी दीदी की। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन के माध्यम से माँ भारती की अमर बेटी लता मंगेशकर जी के परिवार तथा समस्त देशवासियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद स्पीकर मैडम। Now I request all the members of the House to rise in your places and observe silence as a mark of respect to the departed soul.
Secretary General to convey the message of the condolence to the bereaved family, please. Honorable Prime Minister may introduce the new minister to the House, please. Honorable Speaker, Madam, I have immense pleasure to introduce to you and through you to the House, Miss Aarti Sitaraman, Minister for Finance. Miss Ipshita Yadav, Minister of State for Sports. मैं आशा करता हूं कि यह मेरे सदन के मंत्री उचित एवं न्यायपूर्ण रहेंगे तथा इस सदन के तथा अपने मंत्रालय के प्रति सदा वफादार रहेंगे। धन्यवाद स्पीकर मैडम। We now move on to the question hour. Question number 101, Mr. Rahul Singha, please. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज देश के कई हिस्सों में नई पेंशन योजना के स्थान पर ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग लगभग सभी कर्मचारी संगठनों द्वारा की जा रही है तथा कुछ प्रदेशों में इसे लागू भी किया जा चुका है। मैं आज आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केंद्र सरकार का नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई विचार है? कृपया सदन को जानकारी प्रदान करें। Honorable Finance Minister to answer, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि सरकार एक विकासोन्मुखी है। सरकार द्वारा लागू की गई नेशनल पेंशन सिस्टम कर्मचारियों के हित में है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना अर्थात रिटायरमेंट सेविंग स्कीम बनी है। यह एक पेंशन और इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देती है। विगत वर्ष पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों की पेंशन पर 1,56,641 करोड़ व्यय हुआ है। अतः वर्तमान तथा भविष्य में विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में ही विभिन्न प्रकार के बदलाव कर पुरानी पेंशन योजना को अपनाने का कोई मत जाहिर नहीं किया। धन्यवाद। Any supplementary question, please? Honorable Madam, मैं मंत्री महोदय के तर्कों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। राज्यों के लिए संघीय व्यवस्था का हवाला तो सही है, किंतु मेरा प्रश्न मंत्री महोदय से ये है कि यदि राष्ट्रीय पेंशन योजना इतनी ही उचित एवं उत्तम है तो 2004 के पश्चात सांसदों और विधानसभा के सदस्यों को एनपीएस में न जोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम में क्यों जोड़ा गया है? क्या यह एक धोखा नहीं है कि 58 वर्ष की आयु तक सरकार की सेवा करने वाले कर्मचारियों को बुढ़ापे में पेंशन नहीं मिलती, परंतु एक दिन के लिए एमएलए या एमपी निर्वाचित होने पर लाखों व हजारों में पेंशन मिलती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिए कुछ पात्रताएं निर्धारित की गई है, क्या सांसदों को भी पेंशन के लिए कुछ पात्रताएं निर्धारित करने का प्रस्ताव है? यदि हाँ तो इस सदन को जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। Honorable Finance Minister to answer, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक उत्तर की इजाजत चाहूंगी। Permission granted. माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश के कर्मचारी सरकार व प्रशासन की नींव होते हैं। अतः कोई भी सरकार उनका असंतोष नहीं चाहेगी। जहां तक एक विधान एक पेंशन की बात है तो यह व्यवहारिक नहीं है। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। राज्य अपने नियंत्रण में नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने नियम अनुसार कोई भी सुविधा देने के लिए स्वतंत्र मानी जाती है।
ऑनरेबल स्पीकर मैडम, मैं आदरणीय अपने साथी द्वारा उठाए गए इस प्रश्न के जवाब में कहना चाहूँगी कि संसद सदस्य वेतन भत्ता अधिनियम 1954 के तहत समय समय पर गरिमामय सदन में पारित विधेयकों ने अपने विपक्ष की पूर्णतः सहमति व्यक्त की है। संसद किसी भी कानून का निर्माण व लागू करने के लिए पूर्णतः अधिकृत माना जाता है। कानून से ऊपर कोई भी संसद या विधेयक अपनी इच्छा के अनुसार अपनी वेतन और पेंशन को जनहित व समाज सेवा के लिए त्याग सकता है। अतः इस सदन में उसके उदाहरण भरे पड़े हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 102, मिस सुनिधि कौर, प्लीज। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और विकसित राष्ट्र की परिकल्पना में किसानों की भूमिका सर्वोपरि है। यदि हम गांव के देहात किसानों की तरफ अपनी नज़र दौड़ाएं तो हम यह पाएंगे सबसे पहले अपनी पशुओं की सेवा करता है और उसके पश्चात पूरे दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करता है और अंत में जब थका हारा वापस अपने घर पहुंचता है तो तब भी उसे अपनी फसलों और खेतों का ही ध्यान रहता है। स्पीकर मैडम, किसान आम कर्मचारी की तरह 6 से 8 घंटे ड्यूटी नहीं करता, अपितु दिन भर परिश्रम करता है, किंतु हाय हाय कितने दुर्भाग्य की बात है कि फिर भी वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है। मैडम, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सीधे अपने क्वेश्चन पर आइए। यस स्पीकर मैडम, मैं अपने क्वेश्चन पर ही आ रही हूँ। अरे बेटी को मार डालोगे तो बहू कहाँ से लाओगे? बेटी को मार डालोगे तो बहू कहाँ से लाओगे? ज़रा सोचो, किसानों को मार डालोगे तो रोटी कहाँ से लाओगे? रोटी कहाँ से लाओगे? स्पीकर मैडम, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ, विगत 3 वर्षों के अंतर्गत किसानों की आत्महत्या के क्या आंकड़े हैं? आखिर सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए हुए हैं? धन्यवाद मैडम। ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर टू आंसर प्लीज। स्पीकर मैडम, मैं अपनी अजीज दोस्त द्वारा उठाए गए प्रश्न की कदर करता हूँ तथा उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। पिछले 3 वर्षों की यदि बात करें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के तहत 2019 में 5,957, 2020 में 5,579 तथा 2021 में 5,318 किसानों की आत्महत्या के मामले दर्ज हुए हैं। किसान देश का अन्नदाता है, पालनहार है। स्पीकर मैडम, जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, हमने किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, सस्ते दर पर रसायनों तथा दवाइयों की सुविधा प्रदान की है, किसान सम्मान निधि आरंभ की है, फसल के समर्थन में मूल्य की वृद्धि की है। इन सभी का परिणाम है कि पिछली सरकार के पश्चात लगातार 3 वर्षों में आत्महत्या के मामलों में कमी आ रही है। धन्यवाद स्पीकर मैडम। क्वेश्चन नंबर 103, मिस्टर सार्थक सिंह प्लीज। Honorable Speaker Madam, I want to know through you from the Home Minister that has the government took the notice of reports about leakage of data by Facebook and social media? If yes, what measures have been made to prevent the privacy of an individual? Thank you. Honorable Home Minister to answer please. Honorable Speaker Madam, no such instance or report has come to the notice of government. There had been media reports about the leakage of personal data. The government took notice about the leakage of personal data by Facebook and Cambridge Analytica, and in response to notice sent to them, these companies has claimed that there were seen no misuse. However, since the reply given by Cambridge Analytica was not adequately convincing, CBI has been asked to investigate in this matter regard to possible misuse. Madam, further, I want to say that under section 43A and 72A of IT Act 2000 provides an security of data in digital form. It mandates body corporates to implement reasonable security practices for protecting sensitive personal information of legislation. That's all, madam. Any supplementary question? Yes. Please. Honorable Speaker Madam,
I want to ask a supplementary question in this regard, whether the government had taken any action to deal with the said issue, and if so, the details thereof. Thank you, ma'am. Honorable Home Minister to answer, please. Honorable Speaker, Madam, to further strengthen personal data protection of users, government had set up a committee of members under the chairmanship of retired Justice Shri B.N. Krishna to deliberate a data protection framework and work out a data protection bill. The Shri Krishna committee deliberated on various issues and brought out a white paper and data protection. Thereafter, the committee submitted its reports along with draft bill to MATI. The report and the draft bill were placed on the public domain and comments were sought and feedback has been received. That's all, madam. Question number 104, Mr. Hitesh Jogi, please. आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री महोदय से स्वच्छ भारत अधिनियम योजना के बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूं। जुमलों से नहीं, आंकड़ों के द्वारा बताइए कि यह योजना वास्तविक तौर पर कितनी सफल है। आज भारत के कितने राज्य खुले शौच से मुक्त करवाए गए हैं। आज भारत की कितनी महिलाओं के जीवन में इस योजना के बाद बदलाव आया है। मैं ही नहीं, विपक्ष ही नहीं, सारा देश सरकार से जवाब मांग रहा है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। Honorable Health Minister to answer, please. स्पीकर मैडम, मैं अपने साथियों के लिए कुछ कहना चाहूँगा। अब हम मिलकर भारत को स्वच्छ बनाएंगे। अब हम मिलकर भारत को स्वच्छ बनाएंगे। विश्व की नज़रों में भारत का एक स्थान बनाएंगे। लोग हमारी स्वच्छता और निर्मलता के गुण गाएंगे। फिर हम विश्व के लिए विश्व गुरु बन जाएंगे। स्पीकर मैडम, जी हाँ, जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो हमने स्वच्छता को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया, क्योंकि स्वच्छ भारत का विचार यूनिसेफ द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के तत्वाधान में आया, जिसके अंतर्गत यह निर्धारित किया गया था कि 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे भारत को खुले में शौच से मुक्त करवाना था। स्पीकर मैडम, आज इस अभियान में पूरे समाज से हर वर्ग जुड़ रहा है, चाहे वो शिक्षा से हो, खेल से हो या साहित्य सिनेमा से। स्पीकर मैडम, मैं अपने विपक्षी दल को यह बता देना चाहूँगा कि जब तक हमारा देश स्वच्छ नहीं होगा तब तक हमारे देश की एक पहचान नहीं होगी। महात्मा गांधी ने कहा है, Where there is both outer and inner cleanliness, it projects good living. स्पीकर मैडम, स्वच्छ भारत अभियान केवल शौचालय तक सीमित नहीं है। हम स्वच्छता को अपनाकर अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। और रही बात आंकड़ों की, तो मैं अपने विपक्षी दल को यह बता देना चाहूँगा कि हमारे कार्यकाल में 50 करोड़ शौचालयों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में करवाया गया है तथा 3 करोड़ 80 लाख शौचालयों का निर्माण शहरी क्षेत्रों में करवाया गया है तथा 1 करोड़ 40 लाख शौचालयों का अभी निर्माणाधीन है। इस अभियान के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि महिलाओं के नाम पर दी जा रही है, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक सफलतम प्रयास है। स्पीकर मैडम, मैं बताना चाहूँगा कि लेके ख्वाब सुनहरे निकल पड़े हैं हम, लेके ख्वाब सुनहरे निकल पड़े हैं हम। अब आंधी आए चाहे तूफान, अब आंधी आए चाहे तूफान, सब पे कफन लेके निकल चुके हैं हम। धन्यवाद। Question number 105, Mr. Prateek Sangma, please. ऑनरेबल स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार विद्यार्थियों को सरकारी पाठशालाओं की ओर आकर्षित करने के लिए मध्याह्न भोजन योजनाएं, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, वर्दी व मुफ्त बस किराए जैसी कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रही है, किंतु इन सब के बावजूद भी सरकारी पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। स्पीकर मैडम, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विद्यालयों के संचालन में विफल हो गई है? क्या सरकार का शिक्षा क्षेत्र को पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र में देने का कोई विचार है? धन्यवाद स्पीकर मैडम।
Honorable Education Minister to answer, please. पहले मांग लेना माइक। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर मैडम। मैं आपके माध्यम से इस सदन को इस बात से अवगत करा देना चाहता हूं कि ऐसा ज़रूर हुआ है कि पिछले 10 वर्षों में सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में एक कमी पाई गई है और इस क्षेत्र में राज्य सरकारें काम भी कर रही हैं और ये करना उनके ही क्षेत्र में आता है। वे इसको इस ओर कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जहां तक रही बात मैडम केंद्र की, तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है, जिसके पूर्ण रूप से एक बार लागू हो जाने के पश्चात हमें यह उम्मीद है कि विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों की ओर आएंगे और लोगों का झुकाव इस ओर बढ़ेगा। धन्यवाद। The question hour is over now. मैं सदन को बताना चाहूंगी कि आज हमारे मध्य 2 विशिष्ट अतिथि हमारे सदन की कार्यवाही में मौजूद रहेंगे। कृपया आप इनका स्वागत करें। Mr. Robin Fernando from South Africa, who was earlier the governor of Pretoria province and was also honored with the highest civil award. Miss Carolina Jennings from California, she is the famous scientist and also got many national awards in the field of science. These both are the guests from South Africa and California, the foreign guests of 10 days Youth Parliament. I, on behalf of all the members of the House, welcome both of you, hoping that you will greatly enjoy the ongoing proceedings and will be the eyewitness of the whole proceedings. Now, caution invoking breach or privilege. Honorable Speaker Madam, a serious breach of privilege has been committed by the leading newspaper Delhi Times of Delhi while commenting on the recommendation of the Public Accounts Committee. The paper has attributed dishonest motives and I have requested you to allow me to raise a question on the matter now. I have already given notice of it at 10 AM today. Thank you, Speaker Madam. The House hold the right to cope with the guilty of breach of privilege. The House has sole dignity and by not giving any undue importance to such irresponsible acts of the said articles, as it seems has been published for cheap publicity and that's it. There will be no discussion on the said matter. Now, paper to be laid on the table. Secretary General, please. Of a copy of the report, Hindi and English version, of the working group on autonomy for Akashvani and Doordarshan, please. Shri Harsh Rawat, please. Madam, I Harsh Rawat beg to lay the copy of paper of autonomy on Doordarshan and Akashvani. Honorable Minister, it has not been included in today's legislative business. Permission can't be given right now. Thank you, Madam. Secretary General to communicate the message from the upper house of the Youth Parliament to this house, please. Honorable Speaker Madam, I have the honor to communicate the message from the Chairman of the Upper House of Youth Parliament that Common Civil Code Bill 2022 has been passed from the Upper House. It will be presented in the prestigious House on 15th of December 2022. All the members of this House to note, please. Thank you, Madam. Now, calling attention notice. Leader of Opposition, Miss Rohanika Banerjee, to call the notice, please. ऑनरेबल स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से इस गरिमामयी सदन का ध्यान आज एक ज्वलंत विषय की ओर ले जाना चाहती हूँ। यह विषय हमारे देश के भविष्य से जुड़ा है, देश के युवा से जुड़ा है। माननीय महोदया, यदि किसी देश का युवा सही दिशा में हो, उन्नति करे, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। परंतु यदि किसी देश का ही युवा असंतोष और आक्रोश से भरा हो, तो देश की उन्नति कैसे होगी? माननीय महोदया, अपने देश की बात करूं तो मेरे देश का युवा धीरे धीरे असंतोष और आक्रोश की ओर बढ़ रहा है, जिसका प्रमुख कारण है पूरे देश भर में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो जाना। कितने दुर्भाग्य की बात है कि विद्यार्थी दिन रात लाइब्रेरीज में, कोचिंग सेंटर में खून पसीना बहाकर मेहनत करते हैं। बूढ़े गरीब माँ बाप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आजीवन संचित कमाई को कोचिंग सेंटर को दे देते हैं। युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, वह तो बस सफलता पर आश्वस्त है। हाय हाय, कितना धोखा होता है इन बेचारों के साथ।
जब इन्हें पता चलता है कि परीक्षा का पेपर तो पहले ही लीक हो गया था, जिस कारण सरकार ने परीक्षा ही रद्द करा दी। साथ ही साथ मैडम, मैं जेईई मेंस 2021 की बात करूं तो पेपर लीक, नीट 2021 की बात करूं पेपर लीक, एपीपीएससी 2022 पेपर लीक, बीपीएससी 2022 पेपर लीक। मुझे तो लगता है कि सरकार की पूरी किश्ती ही लीक हो गई है। आदरणीय मैडम, छात्रों का पेपर लीक, बाकी सब ठीक, विद्यार्थियों का पेपर लीक, बाकी सब ठीक। यदि सरकार का तंत्र वीक होगा तभी तो पेपर लीक होगा। आदरणीय मैडम, जेईई मेंस 2021 की बात करूं तो पेपर 13 से 15 लाख में बिका था। नीट 2021 का पेपर तो 35 लाख में बिका था। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगी, क्या आईबी, सीआईडी और ईडी जैसे खुफिया एजेंसी केवल विपक्षी दलों को डराने के लिए होती है? क्या ऐसे समय में ये छुट्टी पर होती है? मुझे तो लगता है कि इसमें सरकार की ही कोई मिली भगत है, जो कि एक शर्मनाक विषय है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से चाहूंगी कि वे इस विषय में अपना वक्तव्य प्रदान करें, ताकि युवाओं का परीक्षा प्रणाली पर विश्वास बना रहे। धन्यवाद मैडम। Mr. Rahul Saxena to express his matter in this regard, please. ऑनरेबल स्पीकर मैडम, मैं विपक्ष के नेता द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समर्थन में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैडम, आज इस सरकार के कार्यकाल में परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र असफलता से लड़ रहे हैं, और वहीं एग्जाम लीक कराकर एग्जाम देने वाले जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मैडम, हमारे लिए कितने शर्म की बात है कि आज हम पर कहावतें भी बन रही है कि मेहनत करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि पेपर लीक कराने वाले छोड़ देते हैं। मैडम, अगर आज हिमाचल की ही बात की जाए तो पुलिस परीक्षा पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक, गुजरात में पेपर लीक, आज देश भर में यह घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। मैडम, विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ और उनके मनोबल तोड़ने वालों के खिलाफ अगर सख्त से सख्त कानून नहीं बनाया गया तो सरकारी तंत्र के बाहर और भीतर से इन घटनाओं की आवृत्तियां बढ़ती ही रहेगी। सरकार को आईटी के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उचित प्रयोग करना चाहिए, ताकि हैकर से परीक्षा तंत्र की सुरक्षा की जा सके। धन्यवाद स्पीकर मैडम। Minister of Home to answer, please. ऑनरेबल स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से विपक्ष की माननीय नेता द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने की इजाजत चाहता हूं। Permission granted. मैडम, मैं पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष की माननीय नेता की भावनाओं का सम्मान करता हूं, किंतु जो इन्होंने सरकार पर लगाए गए आरोप है उनको सिरे से खारिज करता हूं। जहां तक राज्य में पेपर लीक की घटनाओं का मामला है तो इसकी जिम्मेदारी तथा लापरवाही राज्य सरकार पर तय की गई है। जेईई मेंस 2021 तथा नीट 2021 पेपर लीक का मामले में भी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। जेईई मेंस में इंटरनेशनल हैकर तथा रशियन हैकर के साथ 3 अन्य दलालों को सीबीआई ने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। नीट 2021 के मामले में भी सीबीआई ने राजस्थान से 3 गिरफ्तारियां की है। इसके पश्चात भी सरकार विभिन्न परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित कर रही है। सीबीआई और ईडी से डरने की बात यदि विपक्ष की मान्य नेता कर रही है तो यह तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। सीबीआई, ईडी, आईबी प्रत्येक उन व्यक्ति के लिए खुला है जो गुनहगार है। हाँ, मैं अपने साथी की बातों से भी सहमत हूँ कि पेपर लीक की घटनाओं के विषय में हमें और कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान में आईपीसी की धारा 120B, 420 तथा 468 के अंतर्गत ये मामले देखे जाते हैं। मैडम, पेपर लीक मामलों में देश के युवाओं का सरकार पर पूर्ण भरोसा है और मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, अपने हौसलों के बल पर अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना मिले, मंच अपना बना देंगे। भले कोई मंच ना मिले, मंच अपना बना देंगे। जो कहते हैं खुद का सितारा है, जो कहते हैं खुद का सितारा है, जगमगा कर उनके सामने कर देंगे फीकी, जगमगा कर उनके सामने कर देंगे फीकी और सूरज भी अपना बना लेंगे। धन्यवाद मैडम।
Now the legislative business, please. Minister of Law and Honorable Speaker, Madam, I beg to move for leave to introduce Constitutional Amendment Bill, One Nation, One Election 2022, under the Section 368 of the Constitution of India. Thank you. now the question is that whether the leave will be granted to the Constitutional Amendment Bill, One Nation, One Election 2022 bill under 368 of the Constitution of India. Those who are in favor of it will say ayes. Ayes. Those who are against it will say noes. Noes. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The leave is granted. Minister of Law and Justice, please. ऑनरेबल स्पीकर मैडम, मैं सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए हाल ही में संपन्न 75% मतदान के लिए प्रदेश की जनता को बधाई देती हूँ तथा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र जिसमें कि 2019 के आम चुनाव में 58 करोड़ से भी अधिक मतदाताओं ने अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग किया था तथा व्यवस्थित व शांतिपूर्ण संचालन हेतु चुनाव आयोग को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लोकतंत्र का यह महापर्व जारी है। देश में समय समय पर आदर्श आचार संहिता लागू रहती है तथा अनेक विकासात्मक कार्य रुके रहते हैं। इस वर्ष भी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और वहां की जनता को न केवल लंबे समय तक आदर्श आचार संहिता का सामना करना पड़ा, अपितु सरकार की मशीनरी के ध्यान का केंद्र भी चुनाव की योजनाएं रही। सरकार का भारी भरकम धन जो कि असल में जनता की गाड़ी कमाई होता है, बार बार हो रहे चुनाव के कारण अनावश्यक व्यय हो जाता है। जनता भी बार बार हो रहे चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, तो कभी पंचायती चुनाव से तंग है। आदरणीय स्पीकर मैडम, आज आपकी इजाजत से मुझे इस गरिमामय सदन में एक ऐसे विधेयक को पेश करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है जिससे न केवल देश में अनावश्यक व्यय की बचत होगी, अपितु लोकतंत्र को दृढ़ता प्राप्त करते हुए विकास कार्यों पर अनावश्यक प्रतिबंधन से भी छुटकारा मिलेगा। ऑनरेबल मैडम, वन नेशन वन इलेक्शन 2022 विधेयक अर्थात एक देश एक चुनाव एक संशोधन विधेयक है। इस विधेयक से देश में चुनाव का स्वरूप बदल जाएगा। इस विधेयक के प्रस्ताव मैं इस सभा के समक्ष रखना चाह रही हूँ। देश में लोकसभा, सभी राज्य विधानसभा तथा पंचायती संस्थानों के चुनाव एक साथ मई 2024 में संपन्न होंगे। 31 दिसंबर 2021 तक निर्वाचित होने वाली विधानसभा तथा पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल पूरे 5 वर्ष न होकर विशेष रूप से मई 2024 तक रहेगा। 1 जनवरी 2022 से मई 2024 तक की अवधि में जिन राज्य विधानसभाओं और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने हैं वे स्थगित रहेंगे और वहां विशेष रूप से राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। नो नो नो, प्लीज मेंटेन साइलेंस। मई 2024 के उपरांत सभी संस्थाओं के चुनाव होने के पश्चात यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में राष्ट्रपति सभी दलों से मंत्रिमंडल का गठन करेंगे और आगामी 5 वर्षों तक सरकार चलाएंगे। यह प्रस्तावित चार की भांति किसी राज्य विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में राज्यपाल सर्वदलीय सरकार का गठन करेंगे और सरकार को चलाएंगे। ये सरकार की बातें हैं। नो नो नो, कृपया आप सदन की गरिमा बनाए रखें। स्पीकर मैडम, इस बिल को पारित करने के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 83, 85(2), 172, 75(3), 174, 356 तथा 10वीं अनुसूची में भी संशोधन करना होगा। Honorable Speaker Madam, I request all the vigilance and responsible members of the House to please come on forward for the betterment of the nation and create history by passing this historical bill. Thank you. ये बिल पास नहीं होना चाहिए। No no no, please maintain decorum in the house.
Mr. Rahul Singha, please. नहीं कुछ नहीं। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपने दल की ओर से माननीय कानून मंत्री द्वारा लाया गया विधेयक वन नेशन वन इलेक्शन 2022 का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं तथा इसे सदन कार्यवाही से निरस्त करने की अपील करता हूं। महोदया, चुनाव लोकतंत्र की शान तथा खूबसूरती है। इन चुनावों पर ही हम अनावश्यक प्रतिबंधों पर बात करेंगे तो ये लोकतंत्र के स्थान पर अधिनायकवाद को जन्म देगा। मैडम, कम अंतराल पर चुनाव होने से जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेही अधिक रहती है तथा वे जनता के प्रति सजग व अधिक उत्तरदायी रहते हैं, किंतु एक निश्चित अंतराल अर्थात 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होने से जनप्रतिनिधि के प्रति जवाबदेही कम रहती है। मैडम, यह बिल एक केंद्र सरकार की चाल है। यह देश में लोकतंत्र को समाप्त कर व्यक्तिवादी व्यवस्था या यूं कहे तानाशाही व हिटलरशाही को जन्म देगा। हिटलरशाही नहीं चलेगी। नो नो नो, यह कोई तरीका नहीं अपनी बात रखने का। आप सभी को समय दिया जाएगा। सत्तारूढ़ दल का चरण इससे पूर्णतः अलोकतांत्रिक हो जाए। आज मैं इस गरिमामयी सदन से यह अपील करता हूं कि लोकतंत्र के हथियारे वन नेशन वन इलेक्शन बिल को सदन में किसी भी सूरत पारित न किया जाए। धन्यवाद स्पीकर महोदया। मिस्टर हर्ष रावत, प्लीज। बाहर से जा बेटे, इधर अंदर से जाना आपने। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, थैंक यू। मैं अपने दल की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन 2022 विधेयक के समर्थन में खड़ा हूं। मैडम, हम आखिर ऐसा क्यों नहीं कर सकते जबकि हमारे पिछले 4 चुनाव 1952, 57, 62 और 67 में भी तो एक साथ ही संपन्न हुए थे और उस समय चुनावी खर्च मात्र 10 करोड़, ध्यान रहे कि मात्र 10 करोड़ से अधिक नहीं आया था और उस समय के इन चुनावों के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कोई खासा नुकसान नहीं हुआ था। स्पीकर मैडम, मैं इस बिल के समर्थन में अपना पक्ष केवल 2 बातों के माध्यम से आपके समक्ष रखूंगा। मेरी पहली बात है चुनावी खर्च। बार बार होने वाले चुनावों के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा घाटा लग रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पिछड़ती जा रही है। मैडम, अगर हम चुनाव आयोग द्वारा दिए गए आंकड़ों को माने तो वर्ष 2009 में 1483 करोड़ और वर्ष 2014 में 3870 करोड़ रुपया व्यय चुनावों को करवाने में हुआ। मैडम, इसके अलावा हम सभी इन बातों से भी अनभिज्ञ नहीं हैं कि सभी पार्टियों, उद्योगपतियों तथा दान आदि के माध्यम से भी हजारों करोड़ काले धन का प्रयोग इन चुनावों में किया जाता है, जो कि पूर्णतः असंवैधानिक है। मैडम, यदि हम एक अमेरिकी एजेंसी की रिपोर्ट को माने तो उसके अनुसार वर्ष 2019 का हमारा आम चुनाव विश्व का सबसे महंगा आम चुनाव साबित हुआ था, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 71,000 करोड़ रुपया व्यय की बात सरकार द्वारा, अमेरिकी एजेंसी के द्वारा की गई है। ये सरकार की बातें हैं। नो नो, प्लीज मेंटेन साइलेंस। मैडम, मैं अपने विपक्ष के नेता को बता देना चाहता हूं कि ये हमारी सिर्फ बातें नहीं है, हमारी इन बातों को साबित करने के लिए हमारे पास उचित आंकड़े यहाँ पे पड़े हैं। मैडम, मैं आपके माध्यम से इस सदन से अपने विपक्ष से ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस भारी खर्च का असर हमारी अर्थव्यवस्था पे नहीं पड़ता है? क्या हम इस धन का उपयोग अपने देश के विकास के लिए नहीं कर सकते हैं? मैडम, मेरा दूसरा मत रहेगा चुनाव में तैनात कर्मचारियों व सुरक्षा कर्मियों की लगने वाली ड्यूटी। बार बार होने वाले चुनावों के कारण कर्मचारियों, विशेषकर अध्यापक कर्मचारियों की बार बार प्रतिनियुक्ति होने के कारण सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाई में एक अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। वे अपनी पढ़ाई में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। इस विषय में हम मंडी संसदीय क्षेत्र का उदाहरण अगर 2012 से ले तो मैडम, सर्वप्रथम 2012 में वहाँ पे विधानसभा के चुनाव हुए, 2013 में लोकसभा के उपचुनाव हुए, 2014 में पुनः एक बार लोकसभा के आम चुनाव हुए, 2015 के अंत में पंचायती राज चुनाव हुए और 2017 में पुनः एक बार विधानसभा के चुनाव हुए। 2019 में लोकसभा के आम चुनाव हुए, वर्ष 2020 में पंचायती चुनाव हुए, फिर कुछ क्षेत्रों में पंचायत के उपचुनाव हुए, वर्ष 2021 में मंडी लोकसभा में उपचुनाव हुए, वर्ष 2022 में हिमाचल में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और जबकि गुजरात में अभी होने बाकी हैं। वर्ष 2023 की बात करें तो 9 राज्यों में
पुनः एक बार विधानसभा के चुनाव होने हैं और वर्ष 2024 में पुनः एक बार लोकसभा के आम चुनाव होंगे। मतलब हर वर्ष चुनाव पर चुनाव। हमारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सत्ता प्राप्ति में ही मस्त व्यस्त हैं। इस दौरान हम अपने कर्मचारी, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की बात करें तो या तो मतदाता सूचियां बनाने या हफ्तों तक इलेक्शन ड्यूटीज देने में व्यस्त रहते हैं। हेडक्वार्टर्स के नजदीक हालात इस कदर खराब है, वहाँ हालात इस कदर बद से बदतर हो चुके हैं कि अध्यापक एक महीने तक इलेक्शन ड्यूटीज देने में बिजी रहते हैं और उस दौरान विद्यार्थी शोर में व्यस्त और जनता काम से त्रस्त रहती है। अगर उस समय कोई व्यक्ति तहसील जाए तो उसे ये सुनने को मिलता है कि काम नहीं होगा, तहसीलदार साहब अभी इलेक्शन ड्यूटी में गए हैं। मैडम, मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह कहना चाहता हूँ कि यदि हमें देशवासियों का धन बचाना है और हमें इस देश की अर्थव्यवस्था को पुनः एक बार पटरी पर लाना है तो हमें इस विधेयक को इस गरिमामय सदन में आज पूर्ण रूप से सर्वसम्मति द्वारा पारित करना होगा और देश और देशवासियों का भला करना होगा। धन्यवाद मैडम। ये बिल पास नहीं होना चाहिए। No, please maintain decorum in the house. नहीं होना चाहिए। Leader of opposition, please. Honorable Speaker Madam, मैं वन नेशन वन इलेक्शन 2022 विधेयक के मध्य सरकार का चुनावों पर बार बार हो रहे भारी खर्च की चिंता के प्रति उनकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, परंतु इस बिल को पारित करने के पीछे जो उनकी मंशा छिपी है उसकी घोर निंदा करती हूँ। स्पीकर मैडम, मैं नेता प्रतिपक्ष के होने के तौर पर वर्तमान स्वरूप में पेश किए गए इस विधेयक का पूर्णतः विरोध करती हूँ। यह बिल तो संविधान की मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ है जिसे हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही आदेश जारी कर लिया है कि संविधान के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगी। ऐसे में सरकार ने सोच भी कैसे लिया कि वे किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 7 वर्ष कर देंगे तो किसी को 1 या 2 वर्ष तक सीमित कर देंगे। क्या यह संभव है कि एक दिन एक बार एक साथ राज्य की विधानसभा, पंचायत और लोकसभा के चुनाव हो सके? क्या इसमें हमारा मतदाता पजल नहीं हो जाएगा? क्या हमारे देश का मतदाता इतना परिपक्व हो गया है कि वो एक साथ इतने चुनावों में भाग ले सके? क्या वो राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के मुद्दों में भेद करने में संभव है? मुझे तो लगता है कि इससे क्षेत्रीय मुद्दे धीरे धीरे दब जाएंगे। आदरणीय मैडम, अपने कुछ क्षेत्रों की बात करूं तो वहां साक्षरता का दर अभी 60% से नीचे है। पिछले वर्ष मंडी विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए जिसमें मैं अपने एक साथी से बात कर रही थी तो मुझे जानने को मिला कि मंडी संसदीय क्षेत्र में कुल 17 उम्मीदवार थे और 18 ऑप्शन नोटा का था। उन 18 में से बुजुर्गों को अपना उम्मीदवार चुनने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। क्या ऐसे में पंचायत के 5 राज्य विधानसभा और लोकसभा के प्रतिनिधि चुनना संभव है? क्या यह पजल करने वाली क्रिया नहीं? और साथ ही साथ संविधान के आर्टिकल 172 1 और 83 2 में तो किसी भी प्रकार का संशोधन बिल्कुल असंभव है। इससे तो हमारा लोकतंत्र ही खतरे में आ जाएगा। मुझे तो लगता है कि इसका सरकार का इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है। नहीं चलेगा। नो, यहाँ कोई तिरंगा नहीं चलेगा। स्पीकर मैडम, शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन करवाने एक बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की भी तो आवश्यकता होगी, कार्यकर्ताओं और ईवीएम की मशीन की भी तो आवश्यकता होगी। मुझे तो लगता है कि सरकार को केवल अपनी चिंता है जबकि हमारे दल को इस देश की चिंता है। ये कभी ईवीएम मशीन की आड़ में तो अब वन नेशन वन इलेक्शन की आड़ में इस देश में अधिनियमवादी रूप से स्थापित होने का जो सपना देख रहे हैं वो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी और मैं इस बिल का पूर्णतः विरोध करती हूँ। धन्यवाद मैडम। प्लीज। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय कानून एवं न्याय मंत्री जी को इस ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन विधेयक वन नेशन वन इलेक्शन 2022 को इस सदन में प्रस्तुत करने पर बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदया, विगत 1 वर्ष से जनसभाओं व देशवासियों से मिले पत्रों से मुझे इस विषय पर फीडबैक प्राप्त हुई है। मुझसे पूर्व
पक्ष व विपक्ष में इस विषय पर भिन्न बातें रखी गई। मैं अपने विपक्ष के साथियों को बता देना चाहता हूं कि आज जहां हम खड़े हैं 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से है। जनता जनार्दन सर्वोपरि है तथा वह बिना कुछ कहे इन चुनावों के माध्यम से अपना मत रखते हैं, जिसे स्वीकार करने का साहस हमारे अंदर होना चाहिए। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, मैं अपने विपक्ष के साथियों को बता देना चाहता हूं कि इस विधेयक के पीछे हमारी सरकार का कोई भी हिडन एजेंडा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से पूछता हूं, आखिर एक वर्ष के अंतराल के अंदर करवाए जाने वाले इन चुनावों को एक साथ क्यों नहीं करवाया जा सकता? यदि इन चुनावों को एक साथ करवाया जाए तो मेरे देश का, मेरे 135 करोड़ देशवासियों का हजारों करोड़ रुपया धन बच सकता है। क्या इसमें कोई बुराई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूं, यदि चुनाव कर्मचारियों विशेषकर अध्यापकों की कम से कम चुनावी ड्यूटी लगती है तो क्या इसमें किसी का नुकसान होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार द्वारा लाया गया यह विधेयक पूर्ण रूप से संवैधानिक दायरे में है, किंतु हम चाहते हैं कि इस विधेयक में राष्ट्रहित के लिए सर्वसहमति बने तथा यह विधेयक 2/3 बहुमत से नहीं अपितु 100% समर्थन के साथ पारित हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय कानून एवं न्याय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इस सदन में प्राप्त सभी सुझावों को उचित स्थान प्रदान किया जाए ताकि हम इस ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन विधेयक वन नेशन वन इलेक्शन को पारित करने के हक से इसके साक्षी बन सके। धन्यवाद स्पीकर मैडम। Now, the question is that the constitutional amendment One Nation, One Election 2022 under section 368 of the Constitution will be taken into the Constitution. Those who are in favor of it will say ayes. Ayes. Those who are against it will say noes. Noes. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now the question is that the clause 1 of the 6 stands part of the bill. There is one amendment in clause 2 by Mr. Rahul Singha. Are you moving it? Now the question is that the clause 1 of the 6 stands part of the bill. Those who are in favor of it will say ayes. Those who are against it will say noes. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. ये बिल एक धोखा है, धोखा है, धोखा है, ये बिल एक धोखा है, धोखा है, धोखा है, लोकतंत्र की हत्या है, हत्या है, हत्या है। सरकार की चाल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार की चाल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये बिल एक धोखा है, धोखा है, धोखा है, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। Law and Justice Minister, please. Honorable Speaker Madam, I have answered most of the points raised by the members of the opposition in course of my speech. I once again thank you for your support and seek the cooperation for implementation of this law. I also request the members of the House to pass this law. Thank you. Now the question is that the whether bill will be passed. Those who are in favor of it will say ayes. Ayes. Those who are against it will say noes. Noes. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted, the bill is passed. Congratulations to all the members of the House to creating history in the welfare of the nation and betterment of the people. Now the House is adjourned till sine die. Thank you.